Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. As I always so, listen to your parents, obey them, and because that is for your well-being, that is for your betterment. Whatever they are saying, that is good for you. Even whatever teachers instructions दे रहे हैं जो, but the instructions given by the teachers, that is for you. So what I can say is only do your work on time, exercise daily, play with your parents and all, as I always say. So students, what we are going to today is today we will as we have already started in practical, tables we will do, and in tables what we will do, first of all we will do the revision of which we have done last week, that is formatting of the tables, creation of table, and after that we will study about how we can specify the height of the row and how we can specify the width of the column. Means हम height of the row and width of the column कैसे change कर सकते हैं. And after that merging cells and splitting cells. Merging मतलब दो cells को merge करना and splitting मतलब उनको अलग अलग करना. So be with me on the screen. Hello students, in last week what we have done in practical is we have done how to create tables in MS Word, and after that how we can give the formatting to that, means table border and color to the border and all these things. So now today we will move forward with how we can merge, how we can split the सेल्स. हम सेल को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, सेल को कैसे मर्ज कर सकते हैं, और उसके अलावा टुडे आई विल टेल यू अबाउट insert columns and rows we have done. So again I'll just go through these things, and another thing I'll tell you about how we can merge the cell, how we can split the cell, and how we can change the column width. So students, as you know that how to open the table, first of all what you have to do is, हम यहाँ पे जाएंगे. what we have to do is we have to write word over there. Word application is there, just click on it, and here word is there, application is there on my screen. To insert the table हम क्या करते हैं, insert tables. as I told you, तीन तरह से हम table insert कर सकते हैं. so I have inserted the table with rows and columns. इसके बाद लास्ट वीक जो हमने किया था, इट वॉज कि हम इसके अंदर सेल्स और कॉलम्स जो हैं, रोज एंड कॉलम्स जो हैं, हम इसके अंदर और कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. सो मैंने आपको बताया था, लेआउट टैब के अंदर जाके हेयर आर कॉलम्स. सो स्टूडेंट, हेयर इज आर लेआउट टैब. लेआउट टैब के अंदर जब हम जाएंगे तो वी आर हैविंग ऑप्शन ओवर देयर, एज यू कैन सी कि इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, insert left, insert right. so these are the options which help us to add the row and column in the table. so students, यहाँ पे अगर मेरा कर्सर है, here my cursor is, अगर मैं करूँगी insert above तो आप देखो कि ऊपर एक रो जो है इंसर्ट हो गई. अगर मैं करूँगी इंसर्ट बिलो तो एज यू कैन सी एक नीचे जो है और रो गेट इंसर्टेड. So these are the options, insert left and insert right. So this help us to create the rows and tables if you want to, from where you can insert rows and columns. again I am telling you, सबसे पहले हम insert option में जाएंगे. हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया, and after that layout tab के अंदर here are the options, insert above, insert below, insert left, insert right. so these are the options which help us to insert rows and columns in the table. यहाँ से हम कर सकते हैं, and this is how we can insert rows and columns. again अगर हमें delete करना है row and column तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी है, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल. तो इससे इन ऑप्शंस को यूज़ करके हम अपने
जो सेल है उनको डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो हेयर, ये जो ऑप्शंस हैं इनसे आप इंसर्ट कर सकते हो। एंड ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं डिलीट, दिस विल हेल्प यू टू डिलीट द रो एंड कॉलम। सो अब आपको ये तो पता चल गया हाउ यू कैन इंसर्ट अ कॉलम एंड अ रो एंड हाउ यू कैन डिलीट अ सेल, रो, कॉलम फ्रॉम अ टेबल। और उससे पहले हमने फॉर्मेटिंग अ टेबल किया था। तो एज आई टोल्ड यू कि फॉर्मेटिंग के अंदर व्हाट वी हैव डन कि हमें उसको कैसे कलर देना है, बॉर्डर देना है, कैसे उसको हम सेल्स के अंदर कलर कर सकते हैं। तो दीज थिंग्स वी हैव डन। और इसके बाद आई टोल्ड यू कि हम क्या करेंगे, हम जो है कॉलम की विड्थ जो है उसको जो है कम ज़्यादा करने के लिए, तो हेयर यू कैन अगेन इन लेआउट टैब, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज ऑप्शन है। एज यू कैन सी प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो हेयर इट इज आपका यहाँ पे रो एंड कॉलम, यहाँ से आप इसकी विड्थ जो है चेंज कर सकते हो। जैसे ये प्रेफर विड्थ दी हुई है, इफ यू विल इंक्रीज, इफ यू वांट टू इंक्रीज इट और डिक्रीज इट, इट कैन बी डन फ्रॉम देयर। सो अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो वेट, सो हेयर यू कैन सी कि मैं इस सेल में हूँ और अगर मैंने प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे कॉलम की विड्थ को अगर मैं इंक्रीज करती जा रही हूँ, इफ यू कैन सी ओवर देयर कि मैंने यहाँ पे इसको 5 पॉइंट या 6 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर कर दिया। एज यू कैन सी कि मेरी इसकी जो विड्थ है इस कॉलम की, जिसमें मेरा कर्सर था उस कॉलम की विड्थ जो है बढ़ गई है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी, जस्ट हैव अ लुक ऑन। जैसे ये मैंने यहाँ से इसको कम कर दिया, आई एम जस्ट डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ दिस कॉलम। एज यू कैन सी इसकी जो विड्थ है डिक्रीज हो गई है। तो फ्रॉम दिस यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द विड्थ ऑफ द कॉलम। कहाँ से कर सकते हो, आप जस्ट क्लिक करोगे एंड हेयर इज योर लेआउट टैब के अंदर, हेयर इज योर प्रॉपर्टीज ऑप्शन। प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे टेबल, रो को भी कर सकते हो। यू कैन reshape the rows as well, you can specify the height of the row। जैसे यहाँ पे हाइट आप इसकी बढ़ा सकते हो। अगर आप इसकी यहाँ से हाइट को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, आपकी रो की हाइट जो है इंक्रीज हो जाएगी, एज यू कैन सी। सो कॉलम के अंदर क्या चीज़ होती है, कॉलम के अंदर विड्थ होती है, रो की हाइट होती है। सो दिस विल हेल्प यू टू इंक्रीज डिक्रीज द हाइट एंड विड्थ ऑफ द रो एंड कॉलम। रो के अंदर यू कैन स्पेसिफाई द हाइट ओवर देयर, आप इसको कर सकते हो। एंड कॉलम के अंदर दिस वन यू कैन डू, इवन यू कैन रीसाइज द सेल एज वेल। एक स्पेसिफिक सेल की भी आप मेजरमेंट यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो इट विल हेल्प यू टू रीसाइज योर टेबल, a specific row, a specific column or a specific cell. So this is from where we can do this. Again I am telling you properties option में जाके row, column, cell and table, तो आप इसमें से किसी की भी हाइट और विड्थ को जो है डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हो। इट विल हेल्प यू। एंड उसके बाद आई टोल्ड यू कि हम स्प्लिट सेल और मर्ज सेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला जो सेल है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। व्हेन आई विल क्लिक ऑन स्प्लिट सेल इट विल आस्क हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज। तो मैं अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कर देती हूँ तो ये वाला मेरा जो सेल है 2 कॉलम और 2 रोज में जो है स्प्लिट हो जाएगा। एज यू कैन सी, स्प्लिट का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड कर देना, किसी चीज को पार्ट्स में स्प्लिट कर देना, डिवाइड कर देना। सो स्प्लिट सेल्स के अंदर जिस सेल के अंदर आपका कर्सर होगा वो उसी सेल को जो है 2 कॉलम्स, अब इसने इसको 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। सो दिस विल हेल्प यू टू स्प्लिट योर कॉलम एंड नाउ if I want to merge the cells, this will help me। अगर ये मेरे जो सेल है ये स्प्लिट है, मर्ज सेल्स कर दूंगी तो इट विल गेट मर्ज।
अगर फॉर एग्जाम्पल आई हैव सिलेक्टेड ऑल दी सेल, मैंने इन सब सेल्स को सिलेक्ट किया एंड आई हैव स्प्लिटेड इट अप लाइक राइट, व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने ये वाली जो पूरी 2 रोज थी इनको 2 कॉलम्स के, इनके सेल्स को 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर दिया. नाउ व्हाट आई वांट टू कि मैं अब इनको मर्ज कर दूं सबको. सो सेम ऑप्शन आई विल यूज मर्ज सेल्स. नाउ द लाइन हैव गॉन फ्रॉम इन बिटवीन बिकॉज उसने क्या किया, ये पूरे के पूरे सेल को ही मर्ज कर दिया बिकॉज आई हैव नॉट गिवन द. लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन दोबारा से मर्ज करना है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा merge cells, then it will give me the shape again like this. What I have done is I can show you again. ये मेरे 2 rows थे या 3 rows को मैंने select किया and what I have given is I have given over there layout tab के अंदर split cells के अंदर मैंने यहाँ पे इसको दे दिया number of rows कितनी है, ये मेरी 3 है. number of column कितने हो जाए 10 मतलब because these are the 5 columns 1 2 3 4 and 5 columns are there. तो इसके अंदर 10 columns मेरे बन जाए, मतलब हर एक कॉलम जो है 2 columns में डिवाइड हो जाए. दिस हैपन. लेकिन अगर अब मैं इन सब सेल्स को अगेन सिलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ पे मर्ज सेल करूंगी तो ये ऐसे हो जाएगा. इट विल मर्ज ऑल द सेल एंड इट विल मर्ज ऑल द सेल रोज एंड कॉलम्स. लेकिन अगर मैं चाहती हूँ ऐसी ही शेप मुझे वापस मिले, मीन्स 5 नंबर ऑफ कॉलम्स एंड 3 नंबर ऑफ रोज जैसे पीछे था, व्हाट आई हैव टू डू इज मुझे हर एक जो है कॉलम जो स्प्लिट किया था मुझे उसको अलग अलग से करना पड़ेगा. अदरवाइज इट इज नॉट गोनो, इट विल नॉट गो टू इट्स ओरिजिनल शेप. अगर मुझे उसको वापस ऐसे करना है तो मुझे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए मीन्स नंबर ऑफ जो सेल्स हैं मुझे उसको इस तरह से आई हैव टू मर्ज इट लाइक दिस. I have to select a single cell and I have to merge it. अगर अब मैं इसको merge करूँगी, now it will merge like again it will be in a single cell. So what I have to do is कि जहाँ पे मैंने merge किया था मुझे उन मुझे 2 so this is how I have to do it. मुझे 2 पार्ट्स को अलग अलग से सिलेक्ट करके एंड आई हैव टू मेक इट लाइक दिस इज हाउ इट गोना हैपन. अगर मैं 2 रोज को एक साथ फिर से उठा लूंगी तो ये क्या होगा, मेरी 2 रोज एक साथ मर्ज हो जाएंगी. बट आई वॉन्ट कि मेरे को इसको सिंगल ही करना है तो मुझे 2 मर्ज सेल को एक साथ uठाना होगा, 2 स्प्लिट सेल्स को एक साथ उठाना होगा और उनको मर्ज करना होगा so that I can get the original shape जैसा वो पहले था. So this is how we can merge or split the cells. Basically हम split cells कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें एक ही रो या कॉलम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना हो, तो ये चीज़ हमें वहाँ पे हेल्प करती है. सो नाउ व्हाट आई हैव टोल्ड यू टुडे इज कि हम सेल को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, हम सेल को मर्ज कैसे कर सकते हैं, और हम कॉलम विड्थ कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, एंड रोज एंड कॉलम्स इंसर्ट या डिलीट कैसे कर सकते हैं, एंड फॉर्मेटिंग आई हैव टोल्ड यू लास्ट वीक. सो अभी हम इतना कर चुके हैं, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग, कॉलम की हाइट विड्थ को सेट करना, रो की उसको हाइट को सेट करना. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन. इन नेक्स्ट वीक वी विल डू अप्लाई बॉर्डर एंड शेडिंग. हम बॉर्डर एंड शेडिंग कैसे देते हैं टेबल को, और रीसाइज कैसे करते हैं, और कैलकुलेशंस कैसे करेंगे हम इसमें. दिस इज व्हाट वी विल डू नेक्स्ट वीक. सो टिल द टाइम अगेन आई एम टेलिंग यू, revise this so that try to practice it so that you can
you will be able to do it by yourself. So students, this is for the today lecture. I hope that you will revise, and I hope you will practice as well, so that you will be able to do the things, you will be able to use these things or use that table formatting and all in your daily life. If anything is required by you at home, or if you are designing something, table or something, you will be easily able to use it. So again, practice it at home, and we will meet next week. Bye students.